A very good morning to all the students. In the last video of class 12 accountancy, we discussed chapter number 6, dissolution of partnership firm. In this chapter, we discussed the accounting procedure on the dissolution of partnership firm. When any firm dissolve, so in this situation, we prepared 4 accounts. The number 1 is realization account, number 2 partners loan account, number 3 partners capital account, and number 4 cash or bank accounts. So today we will move to the practical problems related to the dissolution of partnership firm. This practical problem is related to the general entries, preparation of realization account, preparation of partners capital account, and the preparation of the cash or bank account at the time of dissolution of partnership firm. So let's start the today's topic with the illustration number 1. The illustration number 1 is A and B share profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2007 was as follows. यानी ए और बी दो पार्टनर हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनकी बैलेंस शीट इस तरह से। द लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल ऑफ ए 1,50,000, कैपिटल ऑफ बी 90,000, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,40,000 एंड द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड इज 2,60,000. On the asset side, cash at bank rupees 7,000, debtors 40,000 less provision 1,800, net amount of data is 38,200, stock 54,800, machinery 40,000 and land and building 1,20,000 and total of the assets is 2,60,000. Partners decide to dissolve the firm on the above date. यानी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे. एसेट्स रियलाइज एज फॉलोस. एसेट्स को जब हम सेल करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा. स्टॉक रुपीज़ 45,000, स्टॉक से मिलेगा 45,000. मशीनरी 20% लेस दैन द बुक वैल्यू. मशीनरी की जो बुक वैल्यू है उससे 20% कम पैसा मिलेगा. डेटर्स 35,000. लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर दैन द बुक वैल्यू. लैंड एंड बिल्डिंग जितना भी उसकी बुक वैल्यू से 30,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा. क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस. और क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करेंगे तो वो हमें 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, यानी वो 5% पैसा कम लेंगे. एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटिंग टू 1,200. और रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स यानी जब हम एसेट्स को बेचेंगे उसको रियलाइज करेंगे तो कई तरह के खर्चे होते हैं. सो इन दिस ये जो खर्चे का अमाउंट है वो 1,200 रुपीज़ है. प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड गिव नेसेसरी अकाउंट. यानी इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है एज वेल एज नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. नेसेसरी अकाउंट्स मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट. बट इन दिस क्वेश्चन हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ इन देयर इज़ अ नो एनी काइंड ऑफ पार्टनर्स लोन in the balance sheet of the firm, and thereafter we prepared the partners capital account and cash or bank account. So it is a very easy question. So you know very well when any firm dissolve. So first of all, listen carefully. The first of all we transfer all the assets transferred to the realization account at their book value except cash balance, bank balance and fictitious assets as well as deferred revenue expenditure. यानी जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले हम लोग सारी एसेट्स को उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. और इस सिचुएशन में कुछ चीज़ें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते. द फर्स्ट वन इज़ अ कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस. And the second step you know very well, we transfer the external liability to the realization account. realization account में हम लोग क्या करते हैं, external liabilities को transfer कर देते हैं. कौन सी तरह की चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र करते, इंटरनल लाइबिलिटीज़,
फॉर एग्जांपल पार्टनर्स लोन, उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते. रिजर्व है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर है, सो such kind of things are not transferred to the realization account. So as well as the most important part related to the transfer of the asset to the realization account is that कि जब भी हम assets को realization account में transfer करेंगे तो अगर if there any provision are made against the assets, अगर आपने कोई provision create किया है like the provision for bad debts, provision for replacement of the assets, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, सो इसको हम लोग किस जगह ट्रांसफ़र करेंगे? द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एंड जो एसेट्स की वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफ़र होगी. कैसे? अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट एंट्री, लेट्स वी मूव टू द सॉल्यूशन. द फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर दी ऑल द एसेट्स. सो उसमें कौन कौन सी एसेट ट्रांसफ़र होगी? लेट्स वी टेक इट. The assets transfer to the debtor, stock, machinery and land. कैश ट्रांसफ़र नहीं होता रियलाइजेशन अकाउंट में. ये जो प्रोविज़न है ये क्रेडिट में जाएगा और बाकी सारी चीज़ें, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड है, इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. सो द यू नो वेरी वेल, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, बट यहाँ पे एसेट्स को जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो इट इज़ अ लॉस. सो इस सिचुएशन में रियलाइजेशन इज़ डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेटर? दैट इज़ 40,000. यू नो, ये जो 40,000 है ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे, और जो प्रोविज़न है इट विल बी ट्रांसफर टू द credit side of realization account. So the entry will be provision for doubtful debts debit to realization, and amount is 1800. Okay, so इसकी भी एंट्री पास हो गई. तो डेटर की वैल्यू 40,000, स्टॉक 54,800, मशीनरी 40,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, एंड टोटल अमाउंट विल बी रिटन दिस. तो दो एंट्री यहाँ क्लियर हो गई. सारी एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र किया और प्रोविजंस को क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया गया है इन द रियलाइजेशन अकाउंट. सो द फर्स्ट एंट्री, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश. कैश को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स को हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया उसके बुक वैल्यू पे. द नेक्स्ट is transfer of the provision for doubtful debts, as well as you know very well liabilities को भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं. liabilities कहाँ ट्रांसफ़र करती हैं? in the credit side of the realization account. So the entry will be creditors account debit, provision for bad debts account debit to realization. What is the amount of creditors? 20,000, provision is 18,000 and total amount is 21,800. सो हम लोगों ने दूसरी एंट्री भी पास कर ली, एंड इट इज़ वेरी इजी. इसको लेकर आपको ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है. रियलाइजेशन एसेट्स को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, बिकॉज एसेट्स का ख़त्म हो रही है तो लॉस है. और अगर हम लाइबिलिटीज़ को राइट डाउन कर रहे हैं, अगर ख़त्म कर रहे हैं तो इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर मी. सो रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिट. सो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड एट बुक वैल्यू. यू नो द फर्स्ट सेगमेंट, transfer of assets, second one is transfer of liability, the third segment is realization of assets. So first of all हम उससे related working note आपके सामने देख लो, आपको clear हो जाएगा. The working note is the first point, stock 45,000 से realize हुआ, so it is an income. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट होगी. पहले ही चीज़ तो क्लियर कर लीजिए कि जब एसेट से कोई पैसा मिलेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा, क्योंकि इट इज़ अ इनकम. अब स्टॉक से कितना पैसा मिला? 45,000 रुपीज़ मिला. ओके, स्टॉक से मिला 45,000. मशीनरी से 20% लेस मिला. मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 40,000. तो मशीनरी की वैल्यू 40,000, उसमें से 20% घटा दो 8,000, तो हमें मिला कितना होगा? 32,000. ये मिला और स्टॉक से इतना मिला. डेटर्स से मिला 35,000 और बिल्डिंग से हमें रिसीव हुआ
30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी 1,20,000 में 30,000 और ऐड कर दो. द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 1,50,000. सो हमें कितना कितना मिला, इफ़ यू वांट टू टेक इट दिस एज अ नोट. स्टॉक से मिला 45,000, मशीन से मिला 32,000, स्टॉक डेटा से मिला 35,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग से मिला 1,50,000. द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स that is 2,62,000. so the entry will be bank account debit to realization 2,62,000, 2,62,000. okay, the next one, in this question is also mentioned क्रेडिटर ने 5% लेस एक्सेप्ट किया, यानी पहले हमने क्या किया, एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, फिर एसेट्स को सेल किया, उसकी एंट्री पास कर दी. अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे. लाइबिलिटीज़ में प्रोविज़न का कोई पेमेंट तो होता नहीं है. और रही बात क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आउटसाइडर होते हैं, उनको पे करना है. क्रेडिटर्स की टोटल अमाउंट कितनी है, क्रेडिटर्स की टोटल अमाउंट है 20,000. तो 20,000 में हमें 5% लेस मिला है. सो हमें देना कितना होगा, 19,000 पे करना होगा. एंड इट इज़ एन एक्सपेंस. सो इन दिस सिचुएशन यू नो द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 19,000. okay, so next entry is realization account debit to bank 19,000. the next one, you know, business already paid the expense of realization rupees 1,200, यानी बिजनेस से 1,200 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे किया है. सो ये भी आपके लिए क्या है, लॉस है. एंड यू नो वेरी वेल, लॉस के केस में रियलाइजेशन डेबिट होता है, बैंक क्रेडिट होता है. तो 1,200 रुपीज़ की ये भी एंट्री पास होगी. द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. आफ्टर दैट यू नो, हमने फर्स्ट एंट्री पास की, द ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स. ओके, second entry, transfer of the liabilities. The third entry related to the realization of the assets. The fourth entry related to the payment to liabilities, and fifth entry is related to the payment of the realization expense. The last segment of the realization accounts is the closing of the accounts. You know very well, closing of account means रियलाइजेशन अकाउंट पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं कि हमें रियलाइजेशन में फ़ायदा हुआ है कि लॉस हुआ है. एंड हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड. सो हमने उसमें पहले क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं, इनकम्स को, और एक्सपेंस को उसमें से लेस करते हैं, और जितना पैसा बचता है वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है. सो अगर हम पूरी जनरल एंट्री देखें तो 2,54,800 का हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 21,800 का. सो ये प्लस है, ये माइनस है. 2,62,000 रुपीज़ की इनकम हुई, ये भी प्लस है. रिलेशन टू बैंक है, ये एक्सपेंस है, माइनस है. और रिलेशन टू बैंक ये भी माइनस है. सो पूरा ऐड एंड लेस करेंगे जब आप, सो यू फाइंड दैट कि यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8,800 after the preparation of realization account, and you find that the profit on the realization account is 8,800, and it will be distributed between between the partner in their profit sharing ratio, that is a 3:2. So the entry will be realization account debit to A's capital to B's capital, the 8,800, for A 5,280 and for B 3,520. okay, the next entry is related to the payment to partners, but this amount is brought down after the preparation of the partners capital account. क्योंकि हम जब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें अपने पार्टनर्स को देना कितना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू नो, आपके सामने बैलेंस शीट ऊपर दी होती है, यानी जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा तो सबसे पहले बैलेंस शीट देखिएगा. यहाँ लाइबिलिटीज़ हैं, यहाँ एसेट्स है, तो एसेट्स को पहले यहाँ ट्रांसफ़र करिएगा, लाइबिलिटीज़ को यहाँ, और प्रोविजंस को. ओके, सो आप यू फाइंड दैट कि सबसे पहले हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया. टू डेटर 40,000, टू स्टॉक 54,800, टू मशीनरी 40,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000. देयर आफ्टर हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ को एंड प्रोविजंस को ट्रांसफ़र किया इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट. सेकेंड सेगमेंट क्लियर हो गया. द थर्ड सेगमेंट, इसको हम और क्लियर कर देते हैं आपके लिए, फॉर यू. ओके, द फर्स्ट सेगमेंट इज ट्रांसफर टू द all the assets at book value in the realization account. The second segment, transfer all the
external liabilities and provision to the credit side of the realization account at the book value. Okay, the third part is realization of the assets, यानी हम अपनी assets को सेल किए तो टोटल अमाउंट हमें कितना मिला 2,62,000 by bank. The next segment, the payment of liabilities. The payment of liabilities is creditors को पे किया. Thereafter we paid the realization expense, and after that you find that कि the income on the realization is 2,83,800, and after that it will be deducted from this. So हमने क्रेडिट को ऐड किया और डेबिट को ऐड किया रफ में, and find the difference between the realization account. So we find that the profit on realization is 8,800 and it will be distributed by A and B in their profit sharing ratio. So इसमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि कोई आता ही नहीं है, ना कोई जाता है, ना किसी की डेथ होती है. सो इसमें एक ही रेशियो होता है और पार्टनर भी वही रहते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं. सो 8,800 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया between A and B, that the A share is 5,280 and for B 3,520. So first account is clear, हमने पहला अकाउंट क्लियर कर लिया. Done. The next one is capital account. So when we prepare the capital account, first of all we take the opening balance of the capital. जब हम capital account बनाएंगे सबसे पहले we write down the opening capital of the partner in the credit side of the capital account, and if there are any reserve, but in this question there is a no reserve, there is a no accumulated profit, there is a no accumulated loss, there is a no any kind of fictitious assets, it should be distributed by partner and their profit sharing ratio. अगर liabilities में कोई reserve accumulated profit है तो ये credit में जाता partners capital के, और अगर assets में कोई ऐसा item होता है जैसे deferred revenue expenditure as well as the fictitious assets, so it will be distributed by all partner in their profit sharing ratio. So when we prepare the capital account, so first of all we write down the opening capital, that is for A 1,50,000 and for B that is 90,000. Okay, thereafter you know कि here it is a profit on realization, that is 5,280 for A and 3,520 for B. ए के लिए प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे 5,280 रुपये का, और बी का हुआ है एज लाइक इट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट. जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता था तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता था, लॉस होता तो किससे जाता, डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट. सो प्लीज़ माइंड इट कि अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसे पार्टनर्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एज इट इज़, जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रिपेयर करते थे. ओके, सो वी फाइंड डैट कि पहले से ए के पास कैपिटल में था 1,50,000 रुपये और बी के लिए 90,000 और उनको इतना प्रॉफिट मिला. सो हमें ए और बी को फुल एंड फाइनल पेमेंट के रूप में ए को हमने पे किया 1,55,280 एंड बी 93,520. ओके, इतना बनने के बाद आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट, एट द लास्ट वी प्रिपेयर द बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. ओके, हम कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट गिवन है. सो वी फाइंड दैट कि क्वेश्चन में कैश एट बैंक गिवन है, सो वी विल प्रिपेयर दी बैंक अकाउंट. कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ. आप यहाँ खुद देखिए कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू फाइंड दैट ऑल द थिंग्स आर disposed, all the things appeared in the asset side and the liability side of the balance sheet. जितना डेटर्स था, जितना स्टॉक था, मशीनरी था, लैंड एंड बिल्डिंग था, उसे हमने रिलेशन में ट्रांसफ़र कर दिया. देयर आफ्टर उसको सेल कर दिया. एज वेल एज क्रेडिटर्स जो थे उनको भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, एज वेल एज उनको भी पे कर दिया. पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर की और उनको भी, उनका भी जो बैलेंस है उनको पे करके ख़त्म कर दिया. वी हैव ओनली अ कैश एट बैंक बैलेंस and this account is prepared and it helps to check the arithmetical accuracy in the accounts. यानी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जनरली हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम वी फाइंड दैट कि हमने जो कैश
रिसीव किया बाय द सेल ऑफ द एसेट्स, एंड जितनी भी पे किया पेमेंट्स को, उनका इक्वलेंट आना चाहिए, उनकी वैल्यू इक्वल आना चाहिए, यानी टोटल ऑफ द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द बैंक अकाउंट एंड द पेमेंट कॉलम ऑफ द बैंक अकाउंट शुड बी इक्वल, एंड इट हेल्प्स टू मी द चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो जब भी हम बैंक अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ₹7,000 at the debit side of the bank account, that is 7,000। ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहले बैंक अकाउंट, अब देखिए बैंक अकाउंट जब हमें बनाना है, सो सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस लिखा, बैंक अकाउंट क्लियर हो गया। अब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, सो हम उससे पोस्टिंग आपको सिखाते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस राइट डाउन करोगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में आपने जो भी बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस दिया है तो शुड बी write down the debit side of the bank account. If there is a negative balance in the bank account, so it will be treated as the external liability. यानी अगर बैंक अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, so it will be treated as assets and it will be write down the debits of the bank, debit side of the bank account. But is there any kind of bank overdraft? So it will be not treated as a credit balance of the bank account. It will be treated as the outside the liabilities and it will be transferred to the realization account. So उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोगों ने बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में हमने ओपनिंग बैलेंस को राइट डाउन कर दिया। ओके, अब लेट्स वी मूव टू द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ बैंक आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट दिख रहा होगा वहाँ वहाँ हम लोग फोकस करते हैं। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आप लोगों के लिए। एक बैंक अकाउंट ये है, ये एक अकाउंट बैंक अकाउंट ये है, एक बैंक अकाउंट ये है। सो वी फाइंड दैट द 3 बैंक अकाउंट आर एंटर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। इफ बैंक अकाउंट एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, सो इट विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। माइंड इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट। जब भी हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सो उसके लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल की हेल्प लेंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सो उसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट के, और अगर डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट में दिया है तो उसे हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। किस नाम से? रियलाइजेशन के नाम से, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से इसकी पोस्टिंग होगी। दूसरी बात, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल सेम एट इज वी ट्रीट विद द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के साथ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ बैंक क्या है? डेबिट है, सो इट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। एंड what I am write down in the credit side of the bank account, that is a A's capital and for B's capital. So let's we move to the bank account. First of all, we write down the opening balance of the bank account with the help of the balance sheet. So this balance is already given in the asset side of the bank asset side of the balance sheet. Thereafter we find that the amount entered in the credit side of the realization account, and it will be transferred to the debit side of the bank account named realization account. You know, in the realization account we find that the two kind of amount entered as a bank account in the debit side of the realization account, so it will be transferred to the credit side of the bank account named realization account for the creditors and realization account for the realization expense paid. The amount will be 19,000 and 1,200. Thereafter you also find that we paid the full and final payment to the partners. For A 1,55,280 and for B 93,520, and it will also transfer to the credit side of the bank account. ओके, एक तो ये तरीका है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट से और बैंक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल की हेल्प से आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। एक दूसरा तरीका ये है विच आर टोटली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। यू नो, बैंक अकाउंट इज़ अ
real account, personal account. So in the personal account you know very well, debit the receiver and credit the giver. यानी जब जब बैंक को पैसा मिला होगा तो आप डेबिट कर दो, और जब जब पैसा गया होगा तो क्रेडिट कर दो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सिचुएशन में भी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. अब बैंक को पैसा कब कब मिला? जब हमने बैंक एसेट सेल की. कब कब पैसा गया? जब हमने क्रेडिटर्स पे किया, एक्सपेंस पे किया, जब हमने पार्टनर्स को फुल एंड फाइनल पेमेंट किया. सो इन सारी एक्टिविटीज़ से कुछ एक्टिविटी से पैसा आया है और कुछ एक्टिविटी से पैसा गया है. पैसा आया किस किस एक्टिविटी से? एसेट्स को सेल करने से. यानी बैंक को पैसा कब मिला है? एसेट्स को सेल करने. बैंक ने कब कब पैसा दिया? क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, एक्सपेंस को पे करने के लिए, पार्टनर्स को पे करने के लिए. एंड एट द एंड वी फाइंड दैट द बोथ साइड ऑफ द बैंक अकाउंट मस्ट बी इक्वल. इसमें कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट व्हेन यू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो यू फाइंड दैट देयर इज़ एनी काइंड ऑफ बैलेंस इन द बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. यानी जब आप बैंक अकाउंट बनाते थे उस टाइम तो आप देखते थे कि आपका कोई ना कोई कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस आता था. बट at the dissolution of the partnership firm, please note down in your mind that there's a no balance appeared in the bank account because the balance is closed, because business is closed, so there's a no balance in the bank account. तो ये आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करेगा. जैसे बैलेंस शीट इक्वल आ जाती थी तो हम समझते थे कि हमने जो भी रिलेशन अकाउंट, जो भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, वो सारी चीज़ें सही हैं. वैसे ही एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब बैंक अकाउंट, when the bank account is become equal, so in this situation you find that your realization account, partners loan account and partners capital account is free from the arithmetical error. So I hope आज हम लोगों ने जो फर्स्ट illustration डिस्कस किया है, it will helps to the understand the concept of realization account, partners capital account and the bank account at the time of dissolution of the firm, as well as it also helps to you to pass the journal entry related to the realization account. And one more thing, you know कि हमने सारी journal entry पास की थी, बट एक journal entry हमने छोड़ दी थी, वो ये थी पार्टनर्स को पेमेंट करने की. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी फाइंड दैट देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा थी और डेबिट की वैल्यू कम थी. सो इन दिस केस वी फाइंड दैट कि वी पेड द अमाउंट टू द ए एंड बी 1,55,280 एंड 93,520 रिस्पेक्टिवली. यानी जब हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमने ये देखा कि ए और बी को पेमेंट करना है. सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड दैट व्हाट इज द journal entry is passed, the A's capital account debit, B's capital account debit to bank 155,280, 93,520 and the total amount paid to the A and B that is 2,48,800. सो ये journal entry भी आपको पास करनी होगी. अगर लोन अकाउंट बना होता तो लोन अकाउंट के थ्रू भी हम जो पार्टनर्स को पे करते उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता, journal entry पास करनी पड़ती. सो द journal entry is related to the realization account, partners loan account, partners capital account must be passed in the books of original entry, that is journal, as well as when any question asked to prepare the necessary ledger account at the time of dissolution of the partnership firm. In this situation, first of all we prepare the realization account. In this account, firstly we transfer all the assets at their book value. Thereafter we transfer all the liabilities at their book value as well as the provisions, and thereafter we realize the amount from the sale of the assets, and we paid the external liabilities as well as we paid the realization expense, and after that we find the profit or loss on the realization of the assets and payment of the liabilities. Thereafter we prepare the partners loan account is if there is any loan taken by the firm from the partner. So in this situation we prepared the partners loan account, but in this question there is no need to prepare the partners loan account because there is no any kind of loan provided by the partner. Thereafter we prepared the capital account to find the total amount due to the partners at the time of dissolution of the firm, and at the last we prepared the bank account
to check the arithmetical accuracy in the books of account. So at the end of the today's question, the following notes are important. The first one, in all the question it is necessary to prepare various account in the following order. The first one is, first of all, realization account should be prepared. Secondly, if partner has given any loan to the partners, a partner's loan account should be prepared. Thereafter, partner's capital account prepared, and bank account is prepared. Last of all, assets are transferred to realization account on the values given in the balance sheet. ये बात याद रखनी है आपको. Provision for doubtful debts is transferred to the credit side of the relation account. Thereafter, no entries पास फॉर इट, यानी रिलेशन अकाउंट को हम पहले क्रेडिट साइड में रिलेशन में ट्रांसफर करें, उसके लिए फिर अलग से कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. कैश और बैंक बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट. अ सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट. ओके, सो आई होप टुडे वी studied all the topics very easily and it becomes more easy for you. Apart from this, if you have any kinds of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.